Okay, moving on to the fourth set. This is possibly, according to me, the most complicated set that they've given in CAT 2023 slot 1. Rest of the 3 slots, yes, there were some complications, definitely. But logically, if something which is grinding your mind completely, this will possibly that set. Right. So let's go through the information one by one. धीरे धीरे करके let's first understand the entire story कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. Then we'll try to decipher logic one by one, step by step. ये पढ़ के पहले structure सोचना है, फिर उसमें logic बिठाना है. Right. So a visa processing office VPO accepts visa applications in 4 categories: US, UK, Schengen and others. 4 अलग-अलग categories हैं. The applications are scheduled for processing in 20 15-minute slots. That is the most scary part. So they are talking about 20 15-minute slots, and that makes it 300 minutes. 300 minutes is equivalent to 5 hours. They have given the time limit from 9 a.m. to 2 p.m. That's exactly 5 hours. Okay. 10 applications are scheduled in each slot. तो एक एक स्लॉट 15 मिनट का है और हर एक स्लॉट में 10 एप्लीकेशंस होते हैं. मींस दे आर टॉकिंग अबाउट अ टोटल ऑफ 200 एप्लीकेशंस. राइट. एक बहुत बड़ा चार्ट, 5 घंटे, उसमें 20 अलग अलग स्लॉट, हर स्लॉट में 10-10 करके एप्लीकेशन. सो देयर आर 200 एप्लीकेशंस इन टोटल. ओके. नाउ देयर आर 10 काउंटर्स इन द ऑफिस. 10 counters in the office, 4 dedicated to US applications, 2 each for UK applications, Schengen applications and other applications. तो 10 अलग-अलग काउंटर्स बैठे हुए हैं जहां पे एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा. एंड 10 काउंटर्स में से 4 काउंटर यूएस वीजा के लिए, 2 काउंटर यूके के लिए, 2 काउंटर शेंगेन के लिए, 2 काउंटर अदर्स के लिए. ओके. Applicants are called in for processing sequentially on the first come first served basis whenever a counter gets freed for their category. तो काउंटर अगर फ्री होता है, कैटेगरी मतलब काउंटर अगर अभी नया कोई एप्लीकेंट एक्सेप्ट करने के जगह पे पहुंच चुका है, इन दैट केस जो पहले आया उसको दिया जाएगा. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ओके. द प्रोसेसिंग टाइम फॉर एन एप्लीकेशन इज द सेम विद इन ईच कैटेगरी. कैटेगरी मतलब 4 अलग अलग जो है, यूएस, यूके, शेंगेन एंड अदर्स. हर एक कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं होगा. जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्लॉट है, मान लीजिए यूएस एप्लीकेशन है, कोई एक पर्टिकुलर 15 मिनट का स्लॉट है और मान लीजिए यूएस एप्लीकेशन कंप्लीट करने में 12 मिनट चाहिए. तो अगर 12 मिनट चाहिए तो वो 12 मिनट हर स्लॉट में हर एप्लीकेशन के लिए चाहिए होगा. राइट. सो एवरी एप्लीकेशन विल बी डन इन 12 मिनट्स ईच. बट दे कैन वेरी बिटवीन द कैटेगरीज. तो ये मैंडेटरी नहीं है कि यूएस का अगर 12 मिनट है तो यूके का भी 12 मिनट होगा, तो वो मैंडेटरी नहीं है. लेकिन ये मैंडेटरी है कि यूके का मान लीजिए अगर 10 मिनट का है तो वो सारे स्लॉट्स में 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट हर एप्लीकेशन के लिए लगाएगा. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Each US and UK application requires 10 minutes of processing time. That's data. That's required. Each US and UK application requires 10 minutes of processing time. जो हमने अभी एग्जांपल 12 मिनट का लिया था वो एक्चुअली 10 मिनट है, वो बता दिया. लेकिन यूएस एंड यूके का बताया, Schengen and others का अभी तक हमें पता नहीं. Depending on the number of applications in a category and time required to process an application for that category, it is possible that an applicant for a slot may be processed later. तो अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट में जितने सारे कैंडिडेट्स हैं उनमें कुछ ज्यादा टाइम लग गया, या फिर जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे मैं उसके बीच में ला नहीं पाया, सो द एप्लीकेशन कैन स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट स्लॉट ऑल्सो पॉसिबल. Okay. Now they've started giving you information regarding the set. अभी तक तो बस डिस्क्राइब कर रहे थे कि सिचुएशन क्या है. Okay. On a particular day, Ira, Vijay and Nandini were scheduled for Schengen visa processing in that order. Important points: Ira, Vijay and Nandini, 3 people for Schengen visa processing in that order. मतलब ईरा पहले, उसके बाद विजय, उसके बाद नंदिनी. They were scheduled in that order. They had a 9:15 a.m. slot, but entered the VPO at 9:20. So they were 5 minutes late. Okay.
So they were called in at 9:15, but they came in at 9:20. When they entered the office, exactly 6 out of the 10 counters were either processing applications or had finished processing one and ready to start processing the next. That's a very complicated statement, right? When they entered, जब ये तीनों 9:20 को ऑफिस घुसे, तब उन्होंने देखा कि जितने सारे काउंटर्स हैं, देयर आर 10 काउंटर्स इन टोटल, वो 10 काउंटर में से एग्जैक्टली 6 काउंटर्स वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन का मतलब या तो कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चल रहा है या फिर जस्ट अभी कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग खत्म हुआ है एंड दे आर रेडी टू टेक इन द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, या फिर कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक एप्लीकेशन खत्म हो गया, उसके बाद अगला टाइमिंग काफी देर बाद है, सो ही इज नॉट रेडी टू टेक इन एन एप्लीकेंट राइट नाउ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो ये 3 पॉसिबिलिटी में से लास्ट पॉसिबिलिटी आप हटा दो, लास्ट पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब ये तीनों 9:20 को वीपीओ घुसे, तब उन्हें दिखा कि 6 ऐसे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे या तो काम चल रहा है या फिर पिछला एप्लीकेशन खत्म हुआ एंड दे आर रेडी टू टेक इन द नेक्स्ट एप्लीकेंट। दैट्स इट। Okay, let's see where we can use it, but it's a bit complicated. Next, they've talked about Mahira and Osman. Mahira and Osman, they are the two characters who were scheduled in the 9:30 a.m. slot. Okay, on that day for visa processing in the others category. तो others category में हो गए. Okay, they had mentioned something in the first paragraph that 10 applications are scheduled in each slot. 10 applications are scheduled in each slot. उसमें से हमें 2 के बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन आ चुका है कि शेंगेन एप्लीकेशन, क्योंकि 9:15 को 3 लोगों को बुलाया गया था, तो शेंगेन में हर एक स्लॉट में मिनिमम 3 लोगों को तो डेफिनेटली बुलाया जाता है। एंड अदर्स में आप देखोगे तो माहिरा एंड ओस्मान, दे वर कॉल्ड इन एट 9:30 का जो स्लॉट है, तो अदर्स में एक स्लॉट में एटलीस्ट 2 लोगों को तो डेफिनेटली बुलाया जाता है। मतलब 10 एप्लीकेंट्स में से मिनिमम 5 एप्लीकेंट्स तो यहां आ चुके हैं। ओके, बाकी के बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन है नहीं। नेक्स्ट इज ऑल स्लॉट्स वेर फुल। ओके, द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशंस वाज द सेम इन ऑल द स्लॉट्स। द सेम वाज ट्रू फॉर द अदर 3 कैटेगरीज। ओके, सो अदर 3 सारे कैटेगरीज में ये बता दिया है कि हर एक स्लॉट में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सेम है। जैसे शेंगेन कैटेगरी में हमने अभी देखा कि 9:15 AM के स्लॉट में 3 लोगों को बुलाया गया था, तो मैं ये मान सकता हूं कि मिनिमम 3 लोग एक स्लॉट में बुलाए जाते हैं। अगर मान लीजिए 4 लोग बुलाए जाते हैं तो शेंगेन के हर एक स्लॉट में 4 लोग बुलाए जाएंगे। अगर मान लीजिए अदर्स में 3 लोग बुलाए जाते हैं तो अदर्स के हर एक स्लॉट में 3 लोग बुलाए जाएंगे, राइट? दैट्स ट्रू फॉर एवरी कैटेगरी। 50% of the applications were US applications. What does that mean? We know that a total of 200 applications were done. उसमें से 50% मतलब 100, तो 100 applications बस US वीजा के थे। What does this mean? US वीजा के 4 काउंटर्स हैं, हर एक स्लॉट में, स्लॉट है कितने? There are 20 slots. तो 20 slots में हर एक स्लॉट में number of applications is the same. They have already said that. अगर ऐसा होता है तो यूएस एप्लीकेंट्स एक एक स्लॉट में कितने हो जाएंगे? क्योंकि 20 स्लॉट्स है, 100 एप्लीकेशंस है, सो आई कैन डायरेक्टली से 100 by 20, दैट इज 5। अब आप सोचिए, यूएस एप्लीकेशंस एक एक स्लॉट में 5 फिक्स्ड है, वो होता ही है। शेंगेन में आप जाओगे एक एक स्लॉट में मिनिमम 3, अदर्स में जाओगे एक एक स्लॉट में मिनिमम 2, टोटल कितने हो गए? मिनिमम तो 10 यहीं पे हो गए। और उन्होंने ऑलरेडी बोला था 10 एप्लीकेशंस आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स यूके के जो 2 काउंटर हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वहां पे कोई वीजा एप्लीकेशन के लिए नहीं जा रहा है, विच मीन्स यूके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। तो यूके का पूरा कॉलम आप छोड़ दो, उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो जो भी काम है यूएस, शेंगेन एंड अदर्स को लेके। ओके, all applicants except Ira, Vijay and Nandini arrived on time. So they are the only 3 candidates जो 5 मिनट लेट हुए थे। उनको 9:15 को आने बोला गया था, वो लोग 9:20 को आए थे। Rest everybody came on time. Vijay was called to the counter at 9:25 AM. तो विजय, okay, Vijay came in at 9:20 but he was called in at 9:25. There must be a twist there. Okay.
तो सबसे पहले आप सोचो कि इस पूरे डेटा को आप स्ट्रक्चराइज कैसे करोगे। देखिए, आपको बोला गया है कि पूरा स्लॉट 9 बजे से 2 बजे तक है, 5 घंटे 20 स्लॉट्स 15 मिनट्स ईच। लेकिन जो भी डेटा आपको दिया है ना, वो डेटा आप देखोगे हर जगह पे 9:15, 9:20, 9:25, 9:30 ऐसे वैल्यूज में दिया है। मतलब अगर मैं मान लीजिए 10, 10:05, 10:10 वहां तक भी अगर पहुंच जाता हूं तो भी इसके आगे मुझे डेटा नहीं चाहिए। सो वट एवर डेटा आई रिक्वायर इज फ्रॉम 9 to 10, मैक्सिमम 10:05, 10:10 वहां तक चाहिए, उसके आगे नहीं चाहिए। एंड because they are dividing things like 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, so why don't I distribute the entire data in smaller, that is 5-minute gaps। 5-minute gaps में अगर मैं पूरा एक डायग्राम रेडी कर लेता हूं तो शायद वो टाइमलाइन देख के हमें सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। Now, what am I talking about is, let's say this is the timeline for 9 a.m. Then we have 9:05, 9:10, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45, 9:50, 9:55, 10, 10:05, मान लीजिए 10:10 वहां तक हमारा लास्ट स्टॉप है। सो दिस इज 9, दिस इज 9:05, दिस इज 9:10, 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45, 9:50, 9:55, 10, 10:05, 10:10. Let's say this is how we'll distribute the entire data. We know that UK काउंटर्स का कोई काम नहीं है, सो हटा दीजिए। आपके पास US का 1, 2, 3, 4, US के ये 4 काउंटर्स हैं आपके पास। शेंगेन के आपके पास 2 काउंटर्स हैं, अदर्स के आपके पास 2 काउंटर्स हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर डेटा हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां पे हमें ऑलरेडी पता है यूएस का हर एक जो एप्लीकेशन है वो 10 मिनट का है। मुझे शेंगेन और अदर्स के बारे में अभी तक पता नहीं है, लेकिन यूएस का हर एप्लीकेशन 10 मिनट का होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनना चाहिए। व्हाट आर द टाइम स्लॉट्स? 9 बजे, 9:15, 9:30, 9:45, 10, इस तरह से उनको बुलाया जाता है, राइट? दीज आर द टाइम स्लॉट्स। सो यूएस का जो पहला काउंटर है वहां पे अगर आप एक एप्लीकेशन के लिए 10 मिनट लगाते हो, सो पैरेलली एवरी काउंटर विल टेक 10 मिनट्स। स्टिल वी आर डन विद ओनली 4 ऑफ द एप्लीकेंट्स, राइट? बट मुझे तो पता है एक स्लॉट में 5 एप्लीकेंट्स को एंटरटेन किया जाता है। सो वेयर विल आई पुट द 5th? आई हैव टू पुट इट हियर, देयर इज नो अदर वे आउट। सो हियर आई एम डन विथ फर्स्ट स्लॉट ऑफ यूएस। सेकेंड स्लॉट कितने बजे आप बुला सकते हो? 9:15 को। सो सेकेंड स्लॉट आई कैन स्टार्ट हियर, दैट्स द मैक्सिमम, इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी यहां पे तो बस 3 ही बंदे हुए, बाकी 2 कहां जाएंगे? सो दैट विल स्पिल ओवर यहां पे और यहां पे, राइट? तो सेकेंड स्लॉट वाले सारे खत्म। थर्ड स्लॉट आप कितने बजे शुरू करोगे? 9:30। 9:30 को अगर आप शुरू करते हो कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? 1, 2, 3, इसके आगे तो नहीं जा सकते। तो बाकी दोनों कहां पे होंगे? एक हो जाएगा यहां पे और एक हो जाएगा यहां पे। फोर्थ को आप कितने बजे बुला सकते हो? यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो फोर्थ। 3 हो गए, ये हो गया चौथा और ये हो गया 5th। So that is how you can complete the 4th slot. So this is how the entire distribution will go on for US applications. तो US applications के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, right?
थोड़ा बहुत एक बार क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आंसर हो जाए तो। पहला क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशंस वर शेड्यूल्ड ऑन दैट डे? वेरी गुड, 0। एक क्वेश्चन आंसर हो गया। What is the maximum possible value of the total time required to process others? Others के बारे में मुझे आइडिया है नहीं। Which of the following is the closest to Nandini's application? I don't know. Mahira's application? I don't know. US application. When did the application processing for all US applicants get over on that day? That's a complicated one. They are asking US applicants के सारे applications कितने बजे खत्म होंगे, right? अब देखिए, जब भी कैट में ऐसा कोई सवाल आता है ना, जो देख के आपको लगता है तो मुझे तो बहुत लंबा जाना है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ह्यूज कैलकुलेशन इंटेंसिव, तब हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई छोटा सा लॉजिक छिपा होता है जो आपको ढूंढना पड़ता है। सो दे आर सेइंग यूएस एप्लीकेशंस खत्म पूरे दिन के लिए खत्म कितने बजे होगा, राइट? तो अगर हम लोग डायग्राम में जाते हैं, डायग्राम में आप देखोगे पहला स्लॉट, आप एक बार देखो, पहला स्लॉट जो 5 बंदे हैं पहले स्लॉट के, वो कब खत्म होता है? वो खत्म होता है एग्जैक्टली 9:20 को। दूसरा स्लॉट कब खत्म होता है? एग्जैक्टली 9:35 को। तीसरा स्लॉट कब खत्म होता है? एग्जैक्टली 9:50 को। चौथा कब खत्म होता है? एग्जैक्टली एट 10:05। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये एक्चुअली 9:15 को खत्म होना था, ये एक्चुअली 9:30 को खत्म होना था, ये एक्चुअली 9:45 को खत्म होना था, और ये एक्चुअली 10 बजे खत्म होना था। तो हर एक स्लॉट के लिए अगर खत्म करने के लिए मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, दैट मीन्स एग्जैक्टली 2 बजे जो खत्म होने वाला था पूरी कहानी, वो 2 बजे ना होके 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा। सो लास्ट 2:05 PM. That is the time when all the US applications will be over. So we are done with half of the set, but we are done with 2 very important questions. Rest of the questions are dealing with Schengen and others visa. So we need information regarding that. Okay. उनके बारे में क्या-क्या information है? ईरा, विजय, नंदिनी। मुझे पता है Schengen applications एक स्लॉट में 3 लोग आते हैं। 9:15 के स्लॉट में 3 लोगों को बुलाया गया था, ईरा, विजय एंड नंदिनी। सो ईरा मस्ट बी द थर्ड बिकॉज दे हैव मेंशन्ड इन दैट ऑर्डर। सो ईरा मस्ट बी द थर्ड, विजय मस्ट बी फोर्थ, नंदिनी मस्ट बी फिफ्थ, राइट, इन दैट ऑर्डर। ओके, एंड विजय वाज कॉल्ड इन एट 9:25। विजय वाज कॉल्ड इन एट 9:25। They all of them entered at 9:20. So why wasn't he called at 9:20? Because एक काउंटर वो फ्री नहीं था, इसीलिए 9:20 को बुलाया नहीं गया, 9:25 को हुआ। सो 9:25 को एक काउंटर फ्री हुआ, तब जाके उसे बुलाया गया। ओके, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, when they entered the office, exactly 6 out of the 10 counters were either processing applications or had finished processing one and ready to start processing the next. That's a very very crucial point. Let's move on to the diagram. In the diagram, I'm dealing with Schengen, right? I know that there are 3 people per slot. तो Schengen वीजा में there are 3 applicants, right? 3 applicants, मान लीजिए वो 5 मिनट करके लेते हैं एक एक एप्लीकेशन का। तो ये पहला एप्लीकेशन डन, दूसरा एप्लीकेशन डन, तीसरा एप्लीकेशन डन, तो पहला स्लॉट खत्म। नाउ काउंटर 1, काउंटर 2, both of them are sitting free and they'll be calling in the next applicant at 9:15, right? But the applicants came at 9:20. Fair enough. If the applicants came at 9:20, Ira was called in. Where Ira was called in any one of the counters, then why wasn't Vijay called in? Vijay was called in at 9:25. So 5 minutes cannot be the solution here, right? तो आप सोचिए कैसा वैल्यू आप डालोगे so that पहले स्लॉट में 2 काउंटर्स वो भर जाएं, तीसरा काउंटर वो भी भर जाए, उसके बाद विजय को मौका मिले। नॉट ओनली दैट, तीनों जब अंदर जाए तो उनको 6 ऐसे काउंटर्स दिखें जो वर्किंग कंडीशन में है या फिर दे आर रेडी टू टेक इन द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, राइट? आपको ये दोनों लॉजिकली फिट करना होगा एक साथ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ढूंढ लेते हैं कि यूएस का तो हमने डायग्राम बना लिया है, तो अगर 9:20 को देखा जाए तो कितने काउंटर्स ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है?
920 में ये 1 2 3, ये 3 काउंटर्स वर्किंग कंडीशन में है एंड जो चौथा काउंटर है उसमें बस एक एप्लीकेशन खत्म हुआ है बट ही इज रेडी टू टेक इन द नेक्स्ट एप्लीकेंट, तो ये भी माना जाएगा। सो आउट ऑफ दो 6 काउंटर्स 4 काउंटर तो यूएस के निकले। अब बचे 2 काउंटर। 2 काउंटर में 920 को अगर ईरा को बुलाया जाता है तो डेफिनेटली 920 को दे मस्ट बी रेडी टू टेक इन द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, दैट्स 1। सेकेंडली 920 को अगर विजय को नहीं बुलाया जाता तो डेफिनेटली अ काउंटर वाज ऑक्यूपाइड, दैट्स व्हाई विजय को नहीं बुलाया गया। मींस जो 6 काउंटर्स हैं, दो 6 काउंटर्स आर 4 ऑफ यूएस एंड 2 ऑफ शेंगेन, राइट? ओके, अब शेंगेन का जो है आप 925 तक कोई एक काउंटर इक्वल एप्लीकेशन टाइम पे अगर आपको ऑक्यूपाइड रखना है तो आप क्या कर सकते हो, कौन सा वैल्यू दे सकते हो? ऑब्वियसली हाफ हाफ, 12.5 एंड 12.5। दैट मींस शेंगेन का जो एक एक एप्लीकेशन का टाइम है दैट विल बी 12.5, here also 12.5, so that again another 12.5 comes in, because of which Vijay was called in at 925, but Ira, when she came at 920, she was called in directly. So this is where Ira's application started. This was 111. First lot was done. Then Vijay was called in. And then finally Nandini would be called in here. So this is Vijay slot and this is Nandini slot. So this will take you through a roller coaster. This particular logic, ये logic particularly बिठाना यहाँ पे, this might be difficult. अगर हम लोग others के कैटेगरी में जाएं तो हमें ऑलरेडी क्या पता है, 930 को माहिरा एंड ओस्मान उन दोनों को बुलाया गया था, लेकिन अदर्स कैटेगरी में हर एक एप्लीकेशन का टाइम कितना है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि वो जो 6 काउंटर्स के बारे में वो लोग बोल रहे थे, 6 काउंटर्स, 6 काउंटर्स, either they were working or they were ready to take in the next applicant, वो 6 काउंटर्स तो ऑलरेडी जा चुका है, which means at 920 none of the other category counters were ready to take in the next contestant or nor were they working, right? वो कब हो सकता है? अदर्स के कैटेगरी में एक स्लॉट में एप्लीकेशन ही कितने आते हैं? 2 एप्लीकेशन जो पैरेलली 2 काउंटर में चलता है, वो 2 काउंटर में चलता है, 9 बजे एक शुरू होता है, उसके बाद 9:15 को शुरू होता है, तो 9:15 को शुरू होके वो 9:20 में खत्म हो जाता होगा, तभी 9:20 को दे आर नॉट रेडी टू टेक इन द नेक्स्ट एप्लीकेंट, विच मींस अदर्स के कैटेगरी में हर एक एप्लीकेशन करने के लिए आपको 5 मिनट चाहिए। सो अदर्स के कैटेगरी में 5 मिनट में आप एप्लीकेशन खत्म कर दो। नेक्स्ट विल बी 9:15 to 9:20, नेक्स्ट विल बी 9:30 to 9:35 जहां पे माहिरा एंड ओस्मान को बुलाया गया है। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। दिस विल बी द एंटायर distribution of Schengen and others category, and this will go on, but they have not given me data regarding that, so we are not making any further. Let's move on to the questions quickly. Questions, we were left with only 3. First and last questions were already done using the US application details. What is the maximum possible value of time required to process all applications in others category on that day? Others category में एक application में time ही कितना लगता है? 5 मिनट। आपके पास स्लॉट कितने हैं? 20 स्लॉट्स। हर स्लॉट में कितने एप्लीकेशंस बनते हैं? 2 एप्लीकेशंस, व्हिच मींस 10 मिनट्स पर स्लॉट आपको डेडिकेट करना होता है अदर्स कैटेगरी में। सो 20 स्लॉट्स में कितना टाइम डेडिकेट करना है? 10 into 20 दैट इज 200 मिनट्स। 200 मिनट टोटल चाहिए, वेरी इजी। Which of the following is the closest to the time when Nandini's application process got over? Nandini's application process got over exactly at 9:45. तो हमें और कुछ देखना ही नहीं है, we'll directly mark option D. Which of the following statements is false? The application process of Mahira was completed before Nandini's. Mahira completed before Nandini's. That's actually a true statement. I don't want a true statement, I want a false statement. तो पहला स्टेटमेंट हो गया ट्रू, जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ओस्मान वाज कंप्लीटेड बिफोर विजय's.
Osman was completed before Vijay's, that is also a true statement, right? That means ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता. The application process of Osman was completed before 945. Osman was completed before 945. That is also a true statement. Means this is also true. Finally, application process of Mahira started after Nandini's. Mahira started after Nandini's. No, that is false. Mahira started first, then Nandini's application started, which means last statement that has to be false and this one has to be the answer. So this was by far the most complicated set that I got in CAT 23 slot 1, which has many different angles of logics involved in it, and you have to be very thorough, very calm, very concentrated to actually solve this entire question.